Let's welcome, my dear students, each other. And while welcoming each other, let's get ready for session number 36. Speaking of session 36, we have reached at a point where we like to develop a systems point of view. And while developing a system, what are the issues, concerns, challenges, opportunities which you have to keep in mind? Working in Pakistan, may it be in a small or medium organization or a national or multinational organization, जो एक बुनियादी सवाल आपको अपने आप से करना है, why would you like to suggest to someone that they should develop a knowledge management system? चलिए आप कह सकते हैं कि the answer could be that we like to get ready, we like to compete, we like to come up with the cheaper products. Well, he might say, she might say, chief executive, chief financial officer might say that we have already better technology, efficient machines, cheaper raw material. Why are we going to spend some resources on developing a system which is going to take care of the expertise and know-how of the people? देखिए, ये वो questions और arguments हैं जो आपको intellectually और emotionally ready होना चाहिए whenever you are trying to bring a new system or a new change. May it be a change for better, but the question is, everybody asks, what's in it for me? Why should I do it? तो आज के सेशन में फिर हम लर्न करना चाहेंगे कि आप अकेले शायद ये पूरी टास्क ना कर सकें. लास्ट सेशन के लास्ट स्लाइड को जहन में लाइएगा. We will cover all those steps which you have to go through, come up with the feasibility, come up with some answers to the challenging questions. Maybe you would like to align the business strategy with the knowledge management strategy. Maybe some expertise of this organization, some senior people of this organization are going to retire in the next 6 months or a year. Maybe you like to capture their expertise. Maybe you like to suggest कि जी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स पर्सन थे, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज वर्कर थे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट थे, अभी रिटायर हो रहे हैं. कैन वी somehow capture their knowledge, develop a system, let it be shared with the workers in this factory, in this site, in this office, and may it be sold as a best practice. I said sold. Knowledge for sale. So there could be more than one reasons. आप अपनी reasons भी लेकर आइए. लेकिन ये क्वेश्चन तो आपसे होगा और आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए कि नंबर 1, what is the advantage of this system? May it be creation system, may it be application system, may it be sharing system. But the question is, why should we develop it? How should we develop it? Is it feasible? Is it practicable? Is it doable? Is it affordable? तो किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, my dear students, ladies and gentlemen, you have to do your homework. So today's session is to give you some knowledge and tips how to do the homework of the whole cycle. Not in bits and pieces. सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ, इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, मास्टर प्लान क्या होगा, और जब ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा, इंप्लीमेंट होगा, कहां से रेजिस्टेंस आएगी, कैसे हम लोगों को चेंज करेंगे. एटीट्यूडनल चेंज, बिहेवियरल चेंज, knowledge change, maybe this will help
to change their career plan. Or maybe it will help to bring in more profit, more revenue, more productivity, more satisfaction to the customer. लेकिन आपके पास, once again my dear students, आपके पास answers होने चाहिए, आपके पास solutions होने चाहिए. Why do you want to solve the problem? In the 21st century, why would you like to exploit the data? May it be sales data, may it be satisfaction or complaint data, may it be production data. एक और टिप देता चलूं मैं आपको, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के इश्यूज डिस्कस करने से पहले बुनियादी सा सवाल है, आस्क द कंपनी, आस्क द ऑर्गेनाइजेशन, do you want to keep on exploiting your present markets? Well, if you want to do it, fine, go ahead. Then you don't need knowledge management. But I think, give them an option. Or, do you want to exploit and explore new markets? Yes, that's a chance of growth. That's a chance of profit. That's a chance of higher revenue. That's a chance of return on the investment. The answer may be yes and no. लेकिन आपने एक क्वेश्चन मार्क जनरेट कर दिया. आपने सीईओ को, सीएफओ को, सीटीओ को, सीओओ को सोचने पे मजबूर कर दिया. You are knowledgeable. You have to give them some food for thought. Let them think. They will come back to you. One more tip. Do you want to innovate some future markets? वो कहेंगे बिल्कुल. All right, so if you want to innovate, find some new opportunity in the market, well, then you have to exploit the knowledge of the knowledge workers in the best way possible. Then we need some system. तो देखिए, आपको अपना आर्गुमेंट डेवलप करना होगा, लोगों को कन्विंस करना होगा. One step up, one step down. Once you convince them, once you use the power of your idea, once you use the power of your point, technology will help you. Technology is always there. It's generic. लेकिन आपका आइडिया, आपका आर्गुमेंट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज, that is what is needed first to trigger, to initiate the action. So you be smart, and your knowledge in action will make you even smarter. System life cycle के perspective में we need to keep 7 steps in mind. Maybe 8, but let's talk of 7. Where do we stand? What is our present scenario, style, systems available, existing infrastructure? I cannot do it alone. Number 2, I cannot do it alone. You have to make the team of those people, those knowledge workers, who are either sponsor of your idea, or they are ready to develop this system, or they are ready to act as a change agent. तो टीम वो बनाइए, नॉलेज मैनेजमेंट टीम, इसलिए कि आपको नॉलेज कैप्चर भी करना है, आपको नॉलेज डिस्कवर भी करना है, टेसिट नॉलेज भी, एक्सप्लिसिट नॉलेज भी, एक्सपर्ट्स का नॉलेज भी, आपसे सीनियर लोग, 20-20, 30-30 साल एक्सपीरियंस वाले, ग्रे हेयर्स वाले. तो you have to know, you have to learn what are the tools and techniques available. कैसे उनसे गुफ्तगू होगी, क्या तरीकेकार होगा, how I am going to capture that knowledge and then codify. May it be for creation, discovery, or may it be for application, may it be for transfer. And of course, once you form the team, then you capture the knowledge. चौथा स्टेप ये होगा कि आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए पूरे प्लान का. Once the system is ready, before you let it go out of your department, out of your custody, out of your control, have you tested it with some real data or with some dummy data? Does it deliver what it's supposed to deliver? And then, of course, then you will implement it with the help of the department, with the help of the knowledge workers, with the help of the
chief executive, whoever so is involved, you will implement it. And then, while implementing, if there are some issues of resistance, I'll talk about that. If there are issues, people are not ready to change, how to go about it. तो ये पूरा लाइफ साइकिल आपके जहन में होना चाहिए. So are you ready then to go step by step? Because once we go through the life cycle stages, one by one, then we are ready to learn how to go through the steps of knowledge creating system, how to go through the steps of knowledge sharing system while developing them, and how to take care of the knowledge application, and what are the knowledge capturing techniques, tacit knowledge capturing techniques, explicit knowledge capturing techniques. Number one, we need to evaluate the existing infrastructure. Is there a justification for it? नहीं है तो आप बनाइए justification इसकी. Will the current knowledge be lost because somebody is retiring? Very expert, worked for the company for 20 years. Or he's being transferred, she's being transferred from one city to another, from one factory to another, from one country to another. ठीक है, उसकी promotion हो रही है. But that expertise which will available to you, that you can simply go in and talk to him and get the answer, will no longer be available. Is that a good reason? Justification. Or maybe he is leaving the company. देखिए, आप रोक तो नहीं सकते किसी को. Departure to another company. तो क्या justification है? Justification तो आपको बनानी पड़ेगी. Number two, is the proposed system, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, यानी मैंने आपसे अर्ज किया था कि either you begin with knowledge discovery and creation system to support the knowledge discovery and creation process, or maybe you would like to focus on knowledge dissemination and transfer to begin with. Depend करता है. But whatever the proposed knowledge, नहीं, सबको एक वक्त में ना शुरू कीजिए, मुश्किल हो जाएगी. Is the proposed system needed in one location or in several locations? Stand alone, जो जनरली देखिए आजकल तो stand alone का जमाना नहीं है. Would you like to make it available on intranet or extranet? Would you like to make it available on internet? ये डिपेंड करता है आपको इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को सामने रखते हुए जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए. Are the experts available in house? जिस नॉलेज, जिस एक्सपर्टीज, जिस नो हाउ को आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं, is that expertise available? And not only available, is he willing, is she willing to help in building the system which you have in the mind? देखिए ना, डिपेंड करता है कि आप मार्केटिंग प्लानिंग सिस्टम का नॉलेज लेकर एक नॉलेज सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं, या आप कस्टमर रिलेशनिंग का नॉलेज लेकर नॉलेज क्रिएशन के पर्सपेक्टिव में एक सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं, या प्रोडक्शन के दौरान कोई ऐसी टेक्निक है कि जहां वो सीनियर आदमी, सीनियर एक्सपर्ट इज गोइंग टू लीव, और मे बी देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी बट यू ओनली गॉट वन पर्सन. बड़ा एक कॉमन इशू हुआ करता था जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुई और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन के इशू सामने आए. वेरी फ्यू एक्सपर्ट्स वर अवेलेबल, और जो होते थे कंपनी वाले उनके पीछे पीछे फिरा करते थे कि कहीं ये चले ना जाए. और वो जमाना भी वो था, मतलब Y2K के दौर में, कि सिलिकॉन वैली के बारे में तो लोग ये कहते थे कि सुबह एक कंपनी में काम करते हैं, लंच किसी दूसरी कंपनी के साथ करते हैं, और शाम को डिनर किसी और कंपनी के साथ करते हैं. दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. तो क्वेश्चन ये है कि विल दैट एक्सपर्ट बी अवेलेबल? देन डज द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन रिक्वायर years of experience and cognitive reasoning to solve? दो मुख्तलिफ चीजें. कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आप लर्न करते हैं, उसकी भी इंपॉर्टेंस है.
कुछ चीजें आप कॉग्निटिवली रीजन करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, लेकिन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जस्टिफाई, think about it. What is the justification which is required when are you going to solve the problem? When undergoing knowledge capture, can the expert articulate how problem will be solved? Expert could be a technical expert. He's not a manager. She's not a manager. She may not have good interpersonal skills. बल्कि मुझे कहने का मौका दीजिए, क्या प्रोफेसरों के साथ अमूमन ये प्रॉब्लम रहता है कि क्लास में तो वो बहुत अच्छा टीच कर लेते हैं और क्लास में जब जरूरत पड़े तो टाइम को किल भी किया जा सकता है, कहानी सुनाई जा सकती है, कहानी सुनी जा सकती है, लेकिन यहां कैमरे के सामने हाउ आर दे गोइंग टू आर्टिकुलेट? बिकॉज द कैमरा इज रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी सेकेंड. अच्छा, फिर स्टोरी भी तो मैं कैसे आपसे कहूं कि स्टोरी सुनाइए? It's a very important question. And then how can you ask an expert if he or she is not willing to share a story? Now, storytelling is a very important technique in knowledge management. But if the expert is willing, student तो मेरे सामने है ही नहीं. So please think about it. How would you make him or her articulate, present? वो खुद तो बहुत अच्छा काम करते हैं. खुद किताब पढ़ लेना, समझ लेना, आप मुझसे एग्री करेंगे, बहुत आसान काम है. हां, उस पढ़े हुए को अब दूसरों को समझाना, और अगर क्लास के सामने खड़े होकर आपको माशाल्लाह बड़े ज़हीन स्टूडेंट्स के सामने उस चीज को प्रेजेंट करना पड़े, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टास्क. कैन यू आर्टिकुलेट? कैन यू कम्युनिकेट? कैन यू इंटरपर्सनली present your idea that people are ready, that after listening they can solve their problem? वरना तो देखिए, नॉलेज तो सारा किताबों में मौजूद है. किताब लीजिए, पढ़िए, और आप अच्छे मार्केटियर बन जाएं, अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएं, अच्छे मैनेजर बन जाएं. ऐसा होता नहीं. यू हैव टू ब्रिंग इन द फेस टू फेस टेस्ट एक्सपर्टीज. यू हैव टू समहाउ ask someone, please show me how to solve the problem. The one who will show, उसी को आप एक्सपर्ट कह रहे हैं ना. अब आप उसके बारे में जरा जहन में, अमूमन ये होता है, ये जहन में रख लीजिए, एक्सपर्ट का मतलब ये होगा कि he is excellent in his work practice. He may not be excellent in presenting and showing and telling how to do that work. अगला क्वेश्चन जो आपको जहन में रखना होगा और सिस्टम डेवलप करते हुए जस्टिफाई करना होगा, हाउ क्रिटिकल इज द नॉलेज विच यू आर प्लानिंग टू कैप्चर? हाउ क्रिटिकल? इज इट गोइंग टू बी लॉस्ट? इज इट यूनिक? इज इट नॉन इमिटेबल? इज इट विद ओनली वन और टू पीपल? हाउ क्रिटिकल इट इज? इट शुड बी जस्टिफाइड. Are the tasks non-algorithmic? Very important question. Are the tasks non-algorithmic? देखिए, algorithmic versus non-algorithmic. Machines are algorithmic. और अगर ये non-algorithmic means step by step, procedure by procedure, instructions are written and you can solve it by just following the instruction. Or is it heuristic based? Does it involve intuition? Is it non-algorithmic? Many variables, many constraints. तो उसका मतलब ये होगा कि फिर उस टास्क को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट का जो नॉलेज है, और फिर उसमें ह्यूरिस्टिक को कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे. इज देयर अ चैंपियन इन द हाउस? और देखिए, चैंपियन, स्टार, वो किसी वजह से होता है. उसके नॉलेज को कैप्चर करने का मतलब यह हुआ कि यू आर कैप्चरिंग ए नॉलेज ऑफ द लास्ट 20-30 years. मे बी दिस नॉलेज, जब आप ये कहते हैं कि जी ये मार्केटिंग का नॉलेज प्रोफेसर फिलिप कॉटलर का है, ये मैनेजमेंट का नॉलेज प्रोफेसर पीटर ड्रकर का है,
ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज प्रोफेसर पीटर सेंजे का है, ये नॉलेज मैनेजमेंट का मॉडल प्रोफेसर नोनाका का है. ऑलराइट, दे आर चैंपियन इन देयर फील्ड. There are many years of experience, expertise, work which is going in developing those models and theories. तो जस्टिफाई कर लीजिए. जैसे अमूमन हम कहा करते हैं कि जी अगर एक कंपनी ISO 9001 सर्टिफाई है, माल्कम बॉलरिज अवार्ड उनको मिला है, या आईटी कंपनी के हवाले से हम कहते हैं CMM लेवल 5 और CMM लेवल 4 उनको अवार्ड हुआ है. That means they are the champion in their own sector of economy. They are the champion in their own industry structure. Maybe you can follow them. So try to see if you can have a champion. Champion in marketing planning, champion in marketing segmentation, champion in marketing research, champion production planning, champion in pricing. बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें आपको चैंपियन मिल जाएंगे. जब आपको चैंपियन मिल जाए तो उसके दो फायदे हो सकते हैं. एक तो ये कि आपके पास ऑलरेडी जो एक्सपर्ट से आपने नॉलेज लिया उसको वेरीफाई करने के लिए या वैलिडेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट आपको मिल जाएगा. नंबर 2, ये चैंपियन जो हैं, क्योंकि दे हैव द सक्सेस एट देयर बैक, these champions, they have a success story. So if you walk along with them, if you walk with their sport, your system will be purchased by the people, by the management, by the knowledge workers easily. चैंपियन का कहा लोग जल्दी बाई कर लेते हैं. जस्टिफाई कीजिए, और ये जस्टिफिकेशन शुरू में कर लीजिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना आए. अच्छा, फिर स्कोप क्या है आपके सिस्टम का? कंसीडर द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द प्रोजेक्ट. किस हवाले से? फाइनेंशियल हवाले से. पैसे भी तो आप खर्च करेंगे ना. ऑफ कोर्स देयर इज कॉस्ट फैक्टर. ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से कितने लोग आपको चाहिए होंगे. ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स भी हो सकती है. प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड क्विकली एनफ फॉर यूजर्स टू फोरसी इट्स बेनिफिट्स. अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है. कोई भी प्रोजेक्ट जब आप इनिशिएट करते हैं, खासतौर पर क्वालिटी मैनेजमेंट और नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो ये जहन में रख लीजिए कि वंस यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट यू मस्ट ट्राई टू कंप्लीट क्विकली. अच्छा, क्विकली का मतलब ये नहीं कि ओवरनाइट या ओवर ए वीक या ओवर ए मंथ, नहीं. क्विकली से मुराद ये है कि व्हेन यू आस्क पीपल टू जॉइन यू फॉर दिस चेंज एंड दिस प्रोजेक्ट हैज ए initiation date and a starting date and an ending date, let people know about it. Let the people be in the motivation stage. Let them know that the system is being immersed. They will use it. They will see the benefit. They will feel even more motivated. यानी जो काम एक साल में होना था, I know one company in Gujranwala, they wanted to implement ISO 9001. Very easily they could have done it in 8 to 10 months. They had a deadline of 1 year. It took them 3 years. लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आपकी बात नहीं सुनते. जी ऐसी बात करते रहते हैं, लगता है इनको मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं है, लगता है इनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, लगता है इनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, लगता है इनके पास ट्रेनिंग नहीं है, लगता है ये खुद नहीं जानते हैं. बहुत सारे सवालात हैं. यू आर डीलिंग विद पीपल. प्लीज मेक श्योर दैट you know it, when to start, when to end, how to keep the people motivated enough. देखिए, उस मोटिवेशन स्टेट के अंदर आप अगर सिस्टम को डेवलप कर लेंगे और इंप्लीमेंट कर लेंगे, यू विल बी द स्टार. सक्सेस तो आपको लेनी है. सक्सेस के बगैर तो फिर ये सब मेहनत रायगां जाएगी. चेक टू सी हाउ करंट टेक्नोलॉजी विल मैच टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रपोज्ड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट की, इंट्रानेट की, एक्सट्रानेट की, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, ऑफिस एप्लीकेशंस की, जो भी टेक्नोलॉजी है, क्या वो आपके उस सिस्टम के साथ कंपैटिबल है जो आप डेवलप करने जा रहे हैं? ये आपको देखना पड़ेगा.
हम पिछले सेशंस में पूरी डिटेल डिस्कस करके आए हैं कि उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो वो भी आपको अपने सामने स्कोप को तय करते हुए चीजें रख के चलनी पड़ेंगी। यानी मैं एक छोटी सी बात करता हूं, मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी के 3 प्लांट्स हैं, कराची, लाहौर एंड पेशावर। आर दे ऑल connected? How? Is it a dedicated pipe or would you like to go through internet? फाइबर ऑप्टिक आपने किसी प्रोवाइडर से परचेज की हुई है, पाइप आपके पास मौजूद है, डेडिकेटेड पाइप, और वुड यू लाइक टू यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजी? अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी की आप बात करेंगे, इज इंटरनेट अवेलेबल इन द अदर फैक्ट्रीज? Is it compatible with the kind of technology you're looking for? ये सारे इश्यूज हैं टेक्नोलॉजी के जो आपको शुरू में जहन में रख के चलने पड़ेंगे। And here comes some basic questions. Is it feasible? Can you do it? Can it be affordable? How much it will cost? और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये पहला उसूल है कि प्रोजेक्ट हमेशा टाइम वाइज और कॉस्ट वाइज ओवररन करते हैं। हाउ कैन यू मैनेज द कॉस्ट्स नॉट टू ओवररन? हाउ कैन यू मैनेज द टाइम? इट शुड नॉट टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। इज इट अप्रोप्रिएट? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्चर अप्रोप्रिएट है, वहां पर फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अप्रोप्रिएट है, टेक्नोलॉजी की सिचुएशन अप्रोप्रिएट है। देयर मस्ट बी सम अप्रोप्रिएशन। डज द चीफ एग्जीक्यूटिव नो दैट द बिजनेस स्ट्रेटजी हैज टू बी अलाइन्ड विद द नॉलेज स्ट्रेटजी? एंड देन इज इट प्रैक्टिकेबल? सिस्टम जब आप बना लेंगे, क्या लोग उसको यूज करेंगे? प्रैक्टिकली ये बेस्ट प्रैक्टिस, ये नॉलेज, ये आपकी नो हाउ जब लोगों को अवेलेबल होगी, लेट्स से पोर्टल पर अवेलेबल होगी। पोर्टल हमने डिस्कस किया था ना, पोर्टल इज ए नॉलेज शॉप। कुछ कंपनियां जो है मैंने देखी हैं, उसका नाम ही उन्होंने नॉलेज शॉप रखा हुआ होता है। एंड दे वॉच दैट इन हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी क्लिक्स आर देयर। एम्प्लॉइज कम, knowledge workers come, they click on the portal, they read a best practice, they get the answer to a question, and by the end of the day then they see how many people are using it. Practicable. Does it work? अच्छा, फर्ज कीजिए ये इशू भी उसमें आएगा कि आपने जो सॉल्यूशन का नॉलेज वहां कोडिफाई किया है, इंप्लीमेंट किया है, इज इट बीइंग अपडेटेड? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मेथडोलॉजी चेंज हो रही है, मैकेनिज्म चेंज हो रहे हैं, इज इट अपडेटेड? फिजिबिलिटी क्वेश्चन में फिर ये चीजें भी आपको देखनी होंगी, उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है, बिकॉज दिस विल डिटरमिन व्हाट एक्सटेंट अ न्यू सिस्टम इज कॉस्ट इफेक्टिव। हम तो कॉस्ट सेव करने जा रहे हैं, कॉस्ट ऐड नहीं करने जा रहे। इज इट गोइंग टू ऐड वैल्यू that you can get a premium price? That is also cost saving. लेकिन अगर वैल्यू ऐड नहीं करेगा ये सिस्टम, एम्प्लॉइज में ऐड नहीं करेगा, प्रोसेस में ऐड नहीं करेगा, प्रोडक्ट्स में ऐड नहीं होगा, कस्टमर्स में वैल्यू ऐड नहीं होगी, तो आप प्रीमियम प्राइस कैसे चार्ज करेंगे? टेक्निकल फिजिबिलिटी is determined by evaluating the hardware and software and supporting software with the company's IT infrastructure. ये फिजिबिलिटी का क्वेश्चन है। आप कहेंगे जी नहीं, हार्डवेयर के हवाले से हमें हर कंप्यूटर के अंदर 1 गीगाबाइट की रैम चाहिए, 1 गिग की रैम चाहिए, वहां तो रैम 256 के है। अब आप सबको कहेंगे कि इनकी रैम अपग्रेड कर दें, 100 कंप्यूटर्स हैं। वेल, यू आर आस्किंग फॉर मनी। इज दैट मनी अवेलेबल? इज दैट मनी एलोकेटेड? आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं जिसकी कीमत मिलियंस में है। ये सारी वो चीजें हैं कि जो आपको
फिजिबिलिटी के हवाले से यू मस्ट नो द आंसर्स। और मैंने बिहेवियर की भी बात की थी, बिहेवियर फिजिबिलिटी, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज इन द यूज ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स, जब पाकिस्तान में चंद साल पहले इंप्लीमेंट होने शुरू हुए, कंपनीज ने मिलियंस ऑफ रुपीस परचेज, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम परचेज किए, एंड बिलीव मी दे वर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ रुपीस ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉइज। अब जब ट्रेनिंग पर इतना बजट एलोकेट ही नहीं था, तो दे वर लैकिंग इन द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अगर दी भी तो एक आदमी को मिल गई। नाउ द क्वेश्चन इज ही ready enough to make the other people of the department train? Behavioral issues हैं। आपने मिलियंस ऑफ रुपीस तो खर्च कर दिए सिस्टम को बाई करने में, कुछ लोगों को आपने ट्रेन भी कर दिया, लेकिन वो सिर्फ वही लोग तो नहीं है कि जिन्होंने उस सिस्टम को यूज करना है। देयर मे बी 2 or 3 times more people। जब तक वो सब ट्रेन नहीं होंगे, उस सिस्टम की एफिशिएंसी और उस सिस्टम की प्रोडक्टिविटी सामने नहीं आएगी। एंड दैट इज वन रीजन दैट ERP सिस्टम्स पाकिस्तान के अंदर इट टुक अ लिटिल लॉन्गर। ट्रेनिंग वाज एक्सपेंसिव, बल्कि एक मॉड्यूल की ट्रेनिंग जो है वो बता तो खुद बड़ी एक्सपेंसिव थी, व्हाट टू स्पीक ऑफ द ऑल मॉड्यूल्स प्रेजेंट इन द ERP सिस्टम्स। ERP सॉफ्टवेयर इटसेल्फ वाज वेरी एक्सपेंसिव, वो एक और कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और यहां अब आप बात कर रहे हैं कि नाउ यू वांट टू ब्रिंग इन द नॉलेज मैनेजमेंट इश्यूज। देखिए प्लानिंग जो है वो भी तो नॉलेज पे बेस पे हो रही है ना, तो यू हैव टू लुक इनटू ऑल दीज इश्यूज बिफोर यू टेक अप द स्टार्ट। ट्रेडिशनल अप्रोच टू कंडक्टिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी माइट बी ट्रेडिशनल अप्रोच। क्यों राइट, टीम बन गई, आपने मास्टर प्लान बना लिया, आपने कॉस्ट परफॉर्मेंस के इश्यूज को भी देख लिया, आपने क्वांटिफाई कर लिया सिस्टम का क्राइटेरिया और कॉस्ट को, एंड देन ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू हैव यूजर सपोर्ट थ्रू आउट द प्रोसेस। लेकिन हम जो यहां सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पर्सपेक्टिव में कुछ और चीजें भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे भी और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी, और अगर किसी को नहीं मालूम तो इसको पॉइंट आउट कर दीजिए, रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बिजनेस स्ट्रेटेजी तभी सामने आएगी जब वहां कोई स्ट्रेटेजिक प्लान होगा। और माफ कीजिएगा, हमारी पाकिस्तानी कंपनियों में हम इसको कहते हैं एडहॉकिज्म, डे टू डे। जहां काम ही सारा डे टू डे बेसिस पर हो रहा है, वहां स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होगी? लेकिन ऐसी बात नहीं है। आई नो मेनी कंपनीज इन लाहौर, गुजरांवाला, even medium-sized company, even family-owned companies, they have a plan of the next 3 to 5 years. Sometime I even hear of 10 years plan. ठीक है, उसमें changes आती रहती हैं, but they know some of the companies, पाकिस्तानी companies, टेक्सटाइल सेक्टर में, स्पोर्टिंग सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, ग्लास सेक्टर में, पाकिस्तान का बना हुआ ग्लास जो है किसी भी मुल्क से कम नहीं है। Some of them, they have a strategic plan. What does that mean? They would have a vision. मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता. You might have studied in some other courses as well. They have a vision. They can foresee where we would like to take our company, our customers, our product, functionalities of our product, our processes in terms of improvement. Where? In next 3 to 4, 5 years. Foresee what the business is trying to achieve, how it will be done, and how the new system will achieve the goals. Resources, SWOT analysis कह लीजिए या environmental scanning कह लीजिए, कंपनीज ऐसी हैं कि जो ये प्रोसेस करती रहती हैं. Resources, whatever business we are in, how much do we want to invest in a new system? और यहां हम जिस न्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं वो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है. I was glad to read in a company, it was in the neighboring country. You know, the chief executive of that company, he used to say
that, look, gentlemen, these knowledge workers of my company walk out of my building every evening. I want to make sure that they will come back tomorrow morning. How? He said, the chief executive of that company said, I would like to make sure that they come back. Why? Of course, they will come back for the salary, but the salary could be higher in any other company. They will come back because we provide them learning value. We have in-house training programs in which their learning curve goes higher. We provide them emotional value. Now, no other company is providing strength in your emotions. And now you please tell me, do you have emotions? Everybody has. Machine doesn't, but a human being does. So here is a company providing financial value, learning value, emotional value. They have a unique advantage. But the chief executive says, I want to make sure that I invest these resources in knowledge management system, in knowledge creation system, in knowledge sharing system, in training them, in teaching them new technology, because they are very important resource for us. Culture is the company's political and social environment. Political environment से घबराइए नहीं. जहां दो लोग होंगे वहां पॉलिटिक्स होगी. मुझे कहने का मौका दीजिए कि हस्बैंड और वाइफ में भी पॉलिटिक्स होती है. As long, देखिए, what is politics? You negotiate. You sometime have your point of view different. You sometime listen and be quiet and let other person win. And then some other time becomes quiet and you win. So you know how to adjust. कब बोलना है, कब खामोश रहना है, कब बैठना है, कब जंप लगाना है, कब लेट जाना है. How to adjust. That's all what it is. And this environment is amenable to adopting a new system. देखिए, political and social environment की हम इसलिए बात कर रहे हैं, ये दोनों side by side हैं, और ये resource individuals का, लोगों का resource है. तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप शुरू के अंदर भी स्ट्रेटेजिक प्लान के पर्सपेक्टिव के अंदर इन चीजों का ख्याल रखिए. ऑलराइट, बिजनेस स्ट्रेटेजी, इज देयर अ स्ट्रेटेजिक प्लान? यस, देयर इज अ स्ट्रेटेजिक प्लान. वी नो इन द नेक्स्ट 3 to 5 years which markets, which products, which services, which suppliers, which customers we want to serve. That's what business strategy is. What will be our strategies to launch the product? What will be our strategies to price the product, to promote the product? What will be our strategies to deal with the suppliers? कुछ लोग उनको अब strategic partner कहने लगे. Which markets are we going to enter and how are we going to segment them? Strategies. That is your strategic plan. Now, strategic plan will drive the knowledge management strategy. अब अगर स्ट्रेटेजिक प्लान ही नहीं है तो फिर मेरा ख्याल ये कि वहां नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा. तो बी इंटेलिजेंट, सी और आस्क, इज देयर अ स्ट्रेटेजिक प्लान इन दिस कंपनी? दिस विल बी एन आई ओपनर. अगर नहीं है तो एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनवाइए. देखिए, हर कंपनी बिजनेस तो कर ही रही है ना. बट व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, ये जिस कंपनी की मैं अभी बात कर रहा था नेबरिंग कंट्री के अंदर, कि जो अपने एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल वैल्यू भी, सैलरी भी देती है, फिर कुछ स्टॉक ऑप्शंस भी देती है, कुछ लर्निंग वैल्यू भी देती है, कुछ इमोशनल वैल्यू भी देती है. यू नो हाउ दे वर प्लानिंग देयर मैन पावर? 20 months in advance. They plan 20 months in advance. हमने 20 महीने के बाद कितने इंजीनियर्स, कितने मैनेजर्स, कितने टेक्नीशियंस हायर करने हैं, 20 महीने पहले प्लान करके फिर अखबार के जरिए से, इंटरव्यू के जरिए से, इंटरनेट पर एप्लीकेशंस कॉल करते हैं, फिर स्क्रीन करते हैं, फिर उनको प्रोसेस करते हैं. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस.
तो अगर स्ट्रेटेजिक प्लान ही नहीं है तो सबसे पहले तो जनाब आपको ये कोशिश करनी होगी कि लेट द पीपल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए प्लान। और मैनेजमेंट का पहला कोर्स है और मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्लानिंग। इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल, राइट? तो हां, अगर स्ट्रेटेजिक प्लान है तो देन डेफिनेटली योर जॉब इज हाफ डन। व्हाट इज द नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी? Do you want to get competitive advantage on the basis of what? Somebody say, well, we would like to get competitive advantage on the basis of price. We would like to get competitive advantage on the basis of technology. Okay, fine, that's good. But here we are talking to gain and sustain the competitive advantage on the basis of knowledge. Do people buy it? If yes, then how the business strategy is aligned with knowledge management strategy. बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करेगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को, अब देखिए कस्टमर्स भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, एम्प्लॉइज एंड सप्लायर्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। और नॉलेज मैनेजमेंट की जब आप बात कर रहे होंगे डेफिनेटली वहां फिर आप टेक्नोलॉजी की इमीडिएटली बात करेंगे कि नॉलेज, देखिए ना, पीपल, कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी। टीम इज द नेक्स्ट स्टेप। यू आइडेंटिफाई व्हिच स्टेक होल्डर शुड बी रिक्वायर्ड फॉर दिस केएम सिस्टम। उनका कैलिबर क्या है, आपकी टीम का साइज क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितने एक्सपर्ट से आपने नॉलेज कैप्चर करना है, फिर रियलिस्टिकली डिलीवरेबल्स का टाइम फ्रेम क्या होगा। ये टीम के इश्यूज आपके आ जाएंगे। नॉलेज कैसे कैप्चर करेंगे? एक्सप्लिसिट नॉलेज को कैप्चर करके आप रिपोजिटरीज और डेटाबेसेस और नॉलेज बेसिस में स्टोर करेंगे, वेरियस मीडिया। टेसिड नॉलेज जो है वो कंपनीज के एक्सपर्ट से आप कैप्चर करेंगे। कैसे? इंटरव्यूइंग टेक्निक शेयर करूंगा मैं आपके साथ। इंटरव्यूइंग टेक्निक यूज करेंगे, फेस टू फेस मीटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे आप? नॉलेज डेवलपर्स विल कैप्चर द नॉलेज फ्रॉम द एक्सपर्ट्स इन ऑर्डर टू बिल्ड द नॉलेज बेस। और नॉलेज कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफन इज कैरिड आउट थ्रू द टीम्स, नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। अब बात एक्सपर्ट की हो रही है ना। एक्सपर्ट सर्टनली ही शुड बी द वन दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू टेक नॉलेज फ्रॉम द एक्सपर्ट, you should represent his expertise, because knowledge of the expertise has to be represented, not the profile or the personality of the expert. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने उस एक्सपर्टीज के नॉलेज को कैप्चर करना है। क्वेश्चंस फेसिंग नॉलेज डेवलपर क्या होंगे कि हाउ डज वन नो द एक्सपर्ट इज इन फैक्ट एन एक्सपर्ट? ये पहले आपको तय करना होगा। हाउ वुड वन नो दैट द एक्सपर्ट विल स्टे विद द प्रोजेक्ट? अगर 6 महीने 1 साल का प्रोजेक्ट है, दैट एक्सपर्ट वुड बी अवेलेबल। व्हाट बैकअप शुड बी अवेलेबल अगर वो एक्सपर्ट जो है वो चला जाता है? एंड हाउ वुड द नॉलेज डेवलपर नो व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट विद इन द एक्सपर्ट्स एरिया ऑफ एक्सपर्टीज? थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। नॉलेज डेवलपर जो है, यानी जो नॉलेज को कैप्चर करने के अंदर रोल प्ले कर रहा है, ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ द सिस्टम। His job requires excellent communication skills. ये पहली कंडीशन है। उसको नॉलेज कैप्चर टूल्स का पता होना चाहिए, उसकी अपनी थिंकिंग भी कंसेप्चुअल होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या आर्गुमेंट करना है, कैसे आंसर लेना है, एंड अ पर्सनैलिटी विच मोटिवेट पीपल। इसलिए कि ऐसा ना हो कि इंटरव्यू करते हुए, क्वेश्चन आंसर करते हुए आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि यू टर्न ऑफ द एक्सपर्ट। आपने देखा होगा बाजुकात लोग नाराज हो जाते हैं, और जब नाराज होंगे तो वो नॉलेज तो फिर काम का नहीं आएगा। दिस पर्सन, नॉलेज डेवलपर, शुड हैव अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द चैंपियन एज वेल, अगर कोई वहां चैंपियन है। रैपो विद द टॉप मैनेजमेंट मस्ट बी गुड। तो देख लीजिए कि फिर नॉलेज डेवलपर जो है उसके ताल्लुक चैंपियन के साथ भी है, उसका ताल्लुक जो है एक्सपर्ट के साथ भी है, नोअर, और उसका ताल्लुक नॉलेज वर्कर्स के साथ भी होगा, इसलिए कि कल को उसने इंप्लीमेंट भी करना है, और ऑफ कोर्स डेटाबेसेस के अंदर उसको स्टोर भी करना है। लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस स्लाइड अगेन। नॉलेज डेवलपर इज रियली ए
key person. On one hand, he is going to capture the knowledge from the expert, the knower. On the other hand, he also have a good rapport with some champion who is able to, जैसे कहते हैं उसके कंधे पे हाथ रखने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए. उसके ताल्लुक नॉलेज वर्कर्स के साथ भी अच्छा होगा जिन्होंने इस सिस्टम को यूज करना है, और आईटी वालों के साथ भी उसका ताल्लुक अच्छा होना चाहिए, इसलिए कि नॉलेज बेसिस के अंदर उस नॉलेज को उसने स्टोर भी करना है. अब आप जनाब स्टेज आ गई केएम के ब्लूप्रिंट बनाने की. ऑलराइट, डिजाइन के इश्यूज हैं, स्कोप के इश्यूज हैं, फिर सिस्टम के क्या कंपोनेंट होंगे उसका डिसीजन चाहिए, क्या लेयर्स होंगी. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट 7 लेयर्स. ये वो सारी लेयर्स यहां पे लिखी हुई हैं, इंटरफेस लेयर, कोलैबोरेटिव लेयर, वो 7 लेयर्स यहां पर मौजूद हैं. इन सबको सामने रखते हुए नाउ यू डेवलप द ब्लूप्रिंट. हियर कम्स द इश्यू ऑफ टेस्टिंग. लाइफ साइकिल में, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर ब्लूप्रिंट जब तैयार हो गया, अब उसके बाद टेस्टिंग भी होगी. वेरिफिकेशन प्रोसीजर क्या होगा, दैट द सिस्टम इज राइट. वैलिडेशन प्रोसीजर क्या होगा, दैट द सिस्टम इज द राइट सिस्टम. वैलिडेशन ऑफ केएम सिस्टम इज नेवर फुल प्रूफ. क्यों? इसलिए कि देखिए, 2 एक्सपर्ट किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डू दे ऑलवेज कम इन कंसेंसस? नहीं आते. थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंस, तो फुल प्रूफ नहीं होगा. 100% एग्रीमेंट नहीं होगा. 90% फाइन. इसलिए हम ये कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस, बेटर प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस. हियर कम्स द क्वेश्चन ऑफ इंप्लीमेंटिंग द सिस्टम. सो न्यू सिस्टम is now ready for operation. This means conversion of data into information and into knowledge. This means यूजर को ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो यूज करेंगे. क्वालिटी एश्योरेंस भी जरूरी है. क्वालिटी एश्योरेंस किस चीज की? रीजनिंग एरर्स की, एम्बिग्युइटी की, इनकम्प्लीटनेस की, और कहीं कोई चीज फॉल्स रिप्रेजेंट तो नहीं हो रही. और नॉलेज मैनेजमेंट के सिस्टम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव के अंदर मैंने कहा था ना, रेजिस्टेंस. क्यों यूज करें जी हम इसे? व्हाट बेनिफिट इट विल प्रोवाइड? अच्छा, ये फलां एक्सपर्ट की बात है, ये फलां डॉक्टर ने कहा है, ये फलां प्रोफेसर ने कहा है, मैं तो मानता ही नहीं इसको. आई डोंट लाइक हिज एडवाइस. मैंने उस डॉक्टर के पास नहीं जाना, उसके पास जाना है. एक्सपर्ट का इश्यू है. अब आपको कैसे उसको सॉल्व करना है? अभी हमने थोड़ी देर पहले लर्न किया ना कि लेट अस नॉट फोकस ऑन personality of the expert. Let us focus on the knowledge of the expert. Expertise. अच्छा, फिर सवाल यह है कि जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं वो कैसे इसको यूज करेंगे? कुछ एम्प्लॉइज ट्रबल मेकर्स भी होंगे, वो इसको रेजिस्ट करेंगे. शुरू में हमने कहा था ना, टीम बनाते हुए यू नीड ए स्पॉन्सर, यू नीड सम चेंज एजेंट, यू नीड सम हेल्पर्स. ट्रबल मेकर्स भी कुछ होंगे, हर जगह होते हैं. मुझे कहने का मौका दीजिए, सबूताजर. चेंज जब भी आती है, कुदरत का ये उसूल है, उसमें कुछ सबूताज करने वाले भी होते, बट यू कांट डू एनीथिंग टू देम. बट बी ए स्मार्ट पर्सन, बी ए गुड नॉलेज वर्कर. थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, कौन आपके साथ है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कौन थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज्यादा शो कर रहा है. ट्रबल मेकर. Knowing all this, you just find your way through it. हमने कहा था ना, political culture and social culture. Keep an eye on it. Don't get disheartened. It's everywhere. अच्छा, narrow-minded superstar. Superstar तो हैं. इसको हम कहते हैं tunnel vision. छोड़ें भाई, ये कहां नई चीज आ गई. वो हर नई चीज के खिलाफ ही होते हैं. चेंज होती है ना, और चेंज बड़ा मुश्किल काम है. Resistance via projection, resistance via avoidance, resistance via aggression. दिल छोटा ना कीजिए. ये जब टाइपराइटर हुआ करते थे ना, लोग टाइपराइटर पे लेटर टाइप किया करते थे, वो कहते जी क्लर्क बादशाह है. इंफॉर्मेशन पे बैठता था ना, फाइल पे बैठता था, फाइल मूव ही नहीं करती थी. कंप्यूटर आ गए, बड़ी रेजिस्टेंस थी, हत्ता कि वो अग्रेशन भी थी बाजुकात. लो जी, ये सब लीक हो जाएगा, फाइलें लोग उठा उठाए फिरेंगे. इसलिए कि
वो ये समझ रहे थे कि हमारी कुछ प्रॉपर्टी जो है हमसे छीनी जा रही है, एग्रेशन। तो आप शुरू से इसको जहन में रखिए कि ये होगा, और ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पर्सपेक्टिव में ये स्टेज आएगी, और जब ये आएगी तो आपको कैसे फिर इसको लेके चलना है। इसलिए लेकर हमें इसलिए चलना है कि हम इसकी सक्सेस के जिम्मेदार हैं, और जब हम इसकी सक्सेस के जिम्मेदार हैं तो माफ कीजिएगा हम इसकी फेलियर के भी जिम्मेदार हैं। और फेलियर कैसे होगी कि आपने ये सब स्टेजेस शुरू से जहन में नहीं रखी। हां, अगर आपके जहन में ये सब स्टेजेस रहेंगी कि ऐसे होगा, और अगर ऐसे होगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, योर इंटरपर्सनल स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल, योर स्पोर्ट ऑफ द चैंपियन, योर स्पोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट must be in your pocket or purse. You have already scanned, your concept is right, you will definitely succeed. ठीक है? तो लाइफ साइकिल के पर्सपेक्टिव में इन सारी स्टेजेस को सामने रखते हुए now we have reached at a point कि प्रोसेस पर्सपेक्टिव के अंदर नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर हम बात करेंगे नॉलेज क्रिएशन सिस्टम की। नॉलेज क्रिएशन सिस्टम will help you to implement the knowledge creation or knowledge discovery process. ठीक है जी? तो ये सारे स्टेप्स सामने रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। This is all it happens and always happens. It requires smart people like you, and I'm sure it can be done. And once it is done, everybody will say, फातिमा ने किया था, अली ने किया था, रशीद ने किया था, कामरान ने किया था. They are the successful manager. They should be promoted. They should be given more responsibility, higher salary, higher benefit. Good luck, and I'll see you in the next session, session number 37. Until then, Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.